Good morning, dear students. Today we will discuss the chapter The Age of Industrial Revolution. The Age of Industrialization. That chapter we will discuss according to for which purpose NTSC, because that chapter will not come in your board exam. So in that chapter we will discuss the main points. Firstly, when will you open the book beta? So you will find the two pictures. In one pictures it is given by the what is in 1900 a popular music publishers E.T. Poe published a book music, and according to music book, what is the name of that book name? Dawn of the Century. It means एक नए युग की शुरुआत. क्यों कह रहे हैं E.T. Poe यहाँ पर एक नए युग की शुरुआत? इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि at the center of the picture is a goddess. जो when you will see the picture, you will see in the center one picture is there, goddess is like figure, the angel of progress. और ये किसको प्रोग्रेस कर रहे थे? बिहाइंड द पिक्चर. जब आप पिक्चर को देखेंगे तो बिहाइंड द पिक्चर यू विल सी सम पिक्चर्स आर फ्लोटिंग, यानी कि आपको कुछ पिक्चर्स तैरती हुई नजर आएंगे उसके अंदर. यानी कि व्हाट आर द साइन? दे आर द साइन ऑफ प्रोग्रेस. यानी कि उस समय क्या डेवलप होने की बात कर रहे हैं कि रेलवेज, कैमराज, मशीन्स, प्रिंटिंग प्रेस एंड फैक्ट्रीज डेवलप. तो यानी कि अकॉर्डिंग टू एनटीएससी यू विल रिमेंबर कि विच बुक रिटन बाय पब्लिश बाय द E.T. Poe, डॉन ऑफ द सेंचुरी, इन विच ईयर? इन 1900. क्लियर. और इसमें क्या रिप्रेजेंट किया है? एट द सेंटर ए फीमेल फिगर, यानी कि गोडेसेस, और दैट इज रिप्रेजेंटिंग द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री. प्रोग्रेस इन विच वे? यू कंसीडर रेलवेज, कैमराज, मशीन्स, प्रिंटिंग प्रेस एंड फैक्ट्रीज. नाउ on the page of second page, when you will turn your page on the second page, you will find in the trade magazine. In that on the page of the trade magazines, in the trade magazine what we see? It shows two magicians. We will see two magicians. One at the top, Aladdin from the Orient. Orient का मतलब क्या है? हमारा ईस्ट कंट्रीज, यानी कि मेनली एशियन कंट्रीज. Build a beautiful palace with the help of a magic lamp. यानी कि एक पिक्चर में हम क्या देखते हैं कि अलादीन what build a palace with the help of magic lamp. यानी कि उसको घस के जैसे उसने घिसा अपने मैजिक लैम्प को, क्या डेवलप हुए? मतलब पैलेस. तो यानी कि क्या शो करना चाह रहे हैं? इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओरिएंट का ईस्ट का एशियन कंट्रीज. एंड अकॉर्डिंग टू द मैजिक लैम्प एंड एट द बॉटम, यानी कि इन द डाउन साइड में हमें सी what we see a modern mechanic, and modern mechanic is having modern tools, weaves a new magic. What type of new magic? यानी कि builds bridges, ships, towers, high rise buildings. And Aladdin, so in that two pictures what is representing? In the one E.T. Poe published a book magazine, book music, and what is the name of? Dawn of the Century in 1900. In the second picture at the bottom, sorry at the top, it is given Aladdin, and in the down side a mechanic, modern mechanic with the help of modern tools. So it means Aladdin. Here Aladdin is representing east. Aladdin किसको represent कर रहा है बेटा? ईस्ट को. ये भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. And at the past, और किसको represent कर रहा है? the past according to the western country. वेस्टर्न क्या सोचते हैं? वेस्ट का मतलब जो यूरोपियन कंट्रीज. They were thinking कि ईस्टर्न कंट्रीज peoples are primitive and backward. They don't have knowledge about the new technology. Clear? And the mechanic stands for west. और जो मैकेनिक है जो बॉटम साइड में दिया हुआ है टू मैजिशियंस में, at the what is saying? The mechanic stands for west. And west का मतलब क्या है? मॉडर्निटी. यानी कि किस चीज को एक्सेप्ट करते हैं बेटा? मॉडर्निटी इज आधुनिकता को. And the modern world is associated with rapid technological changes and innovations. यानी कि the modern world किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा यहाँ पर? Rapid यानी कि fast, quickly, technological changes यानी कि develop, and innovations यानी कि new changes came and new invention came that time. Clear? In this chapter we will look at the history focusing first on Britain, the first. What is the first industrial nation, and after that we will discuss about the India also. Clear? Firstly we will discuss the Britain story, and after that we will discuss the India in that chapter. That is our main point. And first before the industrial revolution, यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलप होने से पहले क्या था? Production was also there, but where that production was done. So now we will discuss one by one these points. First we will discuss before the industrial revolution. When we talk about the industrialization, what do we mean by industrialization? का मतलब हमारे माइंड में क्या स्ट्राइक करता है कि मीन्स ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री, कि फैक्ट्रीज बनी होंगी
प्रोडक्शन कहाँ पर होगा? फैक्ट्री प्रोडक्शन, कि फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता होगा उस समय। जब हम बात करते हैं वर्कर्स की, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, तो मतलब हमारे मन में क्या स्ट्राइक करता है, क्या दिमाग में स्ट्राइक किया कि फैक्ट्री वर्कर्स की बात कर रहे हैं। बट दिस इज ए प्रॉब्लमेटिक केस हियर। व्हाई? बिकॉज इवन बिफोर फैक्ट्रीज, की फैक्ट्रीज तो उस समय डेवलप ही नहीं हुई थी प्रॉपर तरीके से। इवन बिफोर फैक्ट्रीज बिगेन लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर द इंटरनेशनल मार्केट, यानी कि फैक्ट्रीज डेवलप होने से पहले भी इंटरनेशनल मार्केट के लिए बेटा प्रोडक्शन होता था, पर वो कहां पर होता था? क्लियर? मार्केट नॉट बेस्ड इन फैक्ट्रीज, यानी कि दैट प्रोडक्शन वाज नॉट डन इन द फैक्ट्रीज, वेयर इट वाज डन, मे बी वेयर, नाउ वी डिस्कस व्हाट इज नेम गिवन दिस फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एज, इस फेज को क्या नाम दिया है कि जो फैक्ट्रीज में नहीं हो रहा था, नॉट इन फैक्ट्रीज, तो ये कहां पर हो रहा था? मे बी फार्म हाउस में या हाउसेज में। तो दिस फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस फेज को हम किस नाम से जानते हैं बेटा? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? अर्ली स्टार्टिंग या अर्ली बिगिनिंग। कोई भी चीज हम स्टार्ट करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग के लिए वर्ड यूज करते हैं, इंडिकेटिंग द स्टार्टिंग एरा, यानी कि जो फैक्ट्री से पहले का जो एरा से बनता है, दैट इज कॉल्ड द प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। In the 17th and 18th centuries, what we will see from towns, and in the 17th and merchants from towns in Europe began moving to countryside. यानी कि in 17th and 18th centuries, merchants मतलब traders moved into the countryside. Why? What is the meaning of countryside? यानी कि in the village area, या we can say that in the remote areas. And for which purpose they moved? What is the main motive here? Why they moved? Supplying money to peasants and artisans. And they were giving the money to the peasants and artisans for which purpose? Produce for an international market, कि आपको हमारे लिए कुछ प्रोडक्शन करना है, और उस प्रोडक्शन को वो कहाँ सेल करते थे? फॉर द इंटरनेशनल मार्केट के लिए। क्लियर? इन द 17th and 18th centuries, merchants moved into the countryside, and in the villages they moved, and for which purpose they moved? What they were doing? They were giving the advance money to the peasants and artisans for which purpose? For produce an international market. Clear up to? After that, expansion of world trade. जैसे जैसे वर्ल्ड ट्रेड एक्सपेंस होता गया, बढ़ता गया बेटा, colonies in different parts of the world. The Britishers also set up their colonies in the different parts of the colonies का मतलब when the Britishers captures our country, तो यानी कि हम ब्रिटेन की क्या थी? ब्रिटिश के एक कॉलोनी थी इंडिया, तो इट मीन्स colonies in different parts of the world. तो जैसे डिफरेंट पार्ट्स में उनकी कॉलोनीज डेवलप होने लगी वर्ल्ड में, डिमांड्स फॉर गुड्स ग्रोइंग वेरी फास्टली, यानी कि जो डिमांड्स है, जो कमोडिटीज की जो चीजें थी, उनकी डिमांड्स भी बढ़ने लगी ऑटोमेटिकली। एंड बट मर्चेंट्स कुड नॉट एक्सपैंड इन टाउन्स, ये कह कि हम ये क्वेश्चंस भी ये कराया जाता है कि व्हाई द मर्चेंट्स कुडंट एक्सपैंड देयर ट्रेड इन द टाउन्स, और व्हाई दे एक्सपैंड देयर मार्केट ओनली इन द कंट्री साइड, कि कंट्री साइड में ही क्यों वो प्रवेश कर पाए। इसका मतलब यहाँ पर कौन पावरफुल थे? अर्बन क्राफ्ट्स एंड ट्रेड गिल्ड्स वर वेरी पावरफुल हियर, यानी कि ट्रेड गिल्ड्स, यानी कि when 4 and 5 merchants they form a group and associations and they are occupying all the area, and urban crafts and trade guilds were very powerful. But what they are doing here? They train craftspeople, maintain control over production, regulate competition and prices. ये सभी चीजें कौन करते थे यहाँ पर अर्बन एरिया में? अर्बन क्राफ्ट्स एंड ट्रेड गिल्ड्स वर वेरी पावरफुल। एंड रिस्ट्रिक्शन द एंट्री ऑफ न्यू पीपल, अगर मर्चेंट्स कोई वहां जाकर एंट्री भी करना चाहते थे टाउन्स में, तो दे डोंट गिव एनी परमिशन, यानी कि रिस्ट्रिक्शन लगा दी उनकी एंट्री के ऊपर कि न्यू पीपल कैन नॉट एंटर हियर। व्हाई? बिकॉज दे वर हैविंग द मोनोपोली। मोनोपोली है कि पूरा जो ट्रेडिंग सेक्टर था उसके ऊपर किसका मोनोपोली था, किसका एकाधिकार था बेटा? मेनली इन द अर्बन क्राफ्ट्स एंड ट्रेड गिल्ड्स। And difficult for merchants, so it means merchants here faced a problem, difficult for new merchants to set up business in town, so that is the main problems. It means merchants they couldn't set up their business here in the towns. Why? Because who is having all the monopoly here? Urban crafts and trade guilds is having all the monopoly, यानी कि उनका ही एकाधिकार था पूरे ट्रेडिंग सिस्टम में। कोई न्यू लोग वहाँ एंटर भी करते तो दे हैव रिस्ट्रिक्शन, यानी कि न्यू पीपल कैन नॉट एंटर हियर। आफ्टर दैट अगेन उनके पास क्या अल्टीमेट सॉल्यूशन? आफ्टर दैट दे टर्न टू द कंट्री साइड, वापिस अब उनको कहाँ आना पड़ा बेटा? कंट्री साइड
साइड में यानी कि विलेज एरिया में ही अपने काम के लिए जाना पड़ा मर्चेंट्स को। आई होप यू अंडरस्टैंड अप टू हियर। नाउ वी विल डिस्कस कि व्हाई आर्टिशियंस एंड पीजेंट्स एग्री, कि यहाँ पर अब हम ये डिस्कस करेंगे कि मर्चेंट्स और जो पीजेंट्स और आर्टिशियंस इस काम के लिए एग्री क्यों हो गए थे। क्या वो फ्री बैठे थे इस काम के लिए कि भाई आप आओ हमें पैसे दो हम आपके लिए प्रोडक्शन करेंगे, या हम इसके आगे डिस्कस करेंगे कि क्या इसके पीछे और कोई भी रीजन हो सकता है। Now we will discuss the why the poor peasants and artisans began working for the merchants. Given it means what were the situations created in front of the artisans and merchants. We see firstly कि open fields were disappear. In the last class we have discussed about the forest society and socialism also. In the class 9 in the last year we have discussed कि open fields were disappeared and commons were enclosed. यानी कि जो उनके open area fields थे वो अब किसने लेना शुरू कर दिया, इनक्लोज कर दिया, ब्रिटिशर्स ने। दे हैव टेकन ऑन द पार्ट एंड आफ्टर दैट पीजेंट्स डिपेंडेड ऑन कॉमन फील्ड्स फॉर देयर सर्वाइवल। यानी कि दैट टाइम पीजेंट्स यानी कि मोस्ट ऑफ द पीजेंट्स दोज हु आर नॉट हैविंग द लैंड या दोज हु आर हैविंग द स्मॉल टाइनी प्लॉट्स ऑफ लैंड दे टोटली डिपेंड ऑन दैट ओपन फील्ड्स, बट नाउ दैट वर इनक्लोज्ड बाय द ब्रिटिशर्स एंड आफ्टर व्हाट हैपेंड depended on common fields for their survivals. Survivals का मतलब they were collecting from their fruits, vegetables, hay and other requirement for their livelihood. Clear? Many had tiny plots of land. यानी कि tiny का मतलब small plots of land थे, but which could not provide work for all members. They were having the small plots of land, but they couldn't fulfill the family requirement. So that's why they were agreed. When peasants gave the advance to the peasants and artisans, they were eagerly, happily. कि now they, because why? Because they were merchants were giving the advance, so they feel happy. अब इनको क्या benefit हो गया? In village simultaneously they can do their own work also here, and they can do the produce also for the international market for the merchants. So that's why they were agreed. So within this system, a close relationship established between the towns and the countryside. Why? Because merchants mainly belongs to the towns, or for which purpose they came in the countryside? For the work production and for the working purpose they came. So it means in this system a close relationship developed in the towns and the countryside. Now a merchant's clothier in England, अगर एक merchant है clothier in England से परचेज कहाँ से तो परचेज करेगा वुल फ्रॉम ए वुल स्टेपलर, जो उनको बेचने वाला वुल स्टेपलर से परचेज करेगा। कैरीड इट, फिर उसको कहाँ ले जाएगा, स्पिनर्स के पास ले जाएगा। स्पिनर्स उसको किस में चेंज करेगा, यार्न थ्रेड बनाएगा उसको, और वास स्पन जो बनाने का आएगा। एंड आफ्टर दैट प्रोडक्शंस टू वीवर्स फुलेट्स देन टू डायर्स। ये प्रोसेस था कि कैसे कैसे वीवर्स के पास जा रहा, फिर फुलेट्स के पास, देन टू डायर्स, और बाद में जो उसका फिनिशिंग पॉइंट था, दिस फिनिशिंग वाज डन इन लंदन। यानी कि मार्केट में बेचने से पहले, इंटरनेशनल मार्केट में बेचने से पहले मर्चेंट्स को फिनिशिंग के लिए इसको कहाँ पहुंचाना होता था बेटा, कौन सी प्लेस पर, लंदन में। यानी कि लंदन, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि विच सेंटर बिकेम द फिनिशिंग सेंटर, तो लंदन बिकेम द फिनिशिंग सेंटर फॉर द क्लोथ्स। यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में सेल करने से पहले फिनिशिंग वर्क कहाँ पर किया जाता था बेटा, लंदन में। क्लियर अप टू नाउ this proto industrialization system? So now the correct definition कि what do you mean by the proto industrialization? कि proto industrial system was a part of network of commercial exchanging. Commercial exchanging का मतलब when they are exchanging the things from one trader to the other trader, या they are changing the things, goods, etc. Now or then who control that proto industrialization was controlled by the mainly controlled by the merchants. And here goods were produced by a vast number of producers, and then who was providing here the goods, a vast numbers of producers within their family farms, not in factories. And during the proto industrialization that work done, but not in any factories, that work done by the farmers in their family farms, यानी कि अपने ही घर की यूनिट में, हाउसेज में ही ये काम करते थे। और मेनली कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता था बेटा, यहाँ पर मर्चेंट्स के द्वारा। At each stage of production 20 to 25 workers employed by each merchant, यानी कि एक मर्चेंट के साथ कितने फार्मर्स मिलकर, यानी कितने फैमिली मेंबर्स काम करते थे, अप्रोक्सीमेटली 20 to 25। क्लियर? Now we discuss the
starting up of the factories. Factories in England came up by the early 1730s. यानी कि अप्रोक्सीमेटली हम कहें कि फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड, व्हेन फैक्ट्रीज केम इन इंग्लैंड अप्रोक्सीमेटली इन द अर्ली 1730s, बट लेट इन द 18th centuries नंबर ऑफ फैक्ट्रीज मल्टीप्लाइड. 1730s में सेटअप हुई, लेकिन जैसे जैसे लेट लास्ट तक जाते जाते क्या हुआ, फैक्ट्रीज वर मल्टीप्लाइड, ज्यादा हो गई. द फर्स्ट सिंबल ऑफ द न्यू एरा, जो न्यू एरा बना, एक नई शुरुआत हुई. कौन से? उससे कॉटन से. कॉटन में क्या चेंजेस आए? क्यों हम कॉटन का कह रहे हैं? क्योंकि जो कॉटन का प्रोडक्शन है बूम्ड इन द लेट 19th centuries, यानी कि कॉटन का प्रोडक्शन 19th centuries में काफी बढ़ गया. क्यों? ऐसे क्या हुआ कि जो कॉटन का चेंजेस हुए इतने? हमने देखा कि 1760 में ब्रिटेन इंपोर्टिंग 2.5 मिलियन पाउंड्स, जो कॉटन का कितना इंपोर्ट कर रहे थे? 2.5 मिलियन पाउंड्स. कौन सी ईयर में बेटा? इन विच ईयर? 1760. बट इन 1787, यानी विदिन 17 years इट सोल्ड 22 मिलियन पाउंड्स. लेकिन 1787 में कितना मिलियन पाउंड्स पहुंच गया बेटा? 22 मिलियन. यू कैन सी द चेंजेस. 2.5 मिलियन से 22 मिलियन पाउंड्स. क्या ऐसा हुआ कि चेंजेस हो गए? ड्यू टू न्यू इन्वेंशन. नाउ वी विल डिस्कस why a series of invention in the late 19th century, some invention done in the 18th centuries, and production process में changes आए. which production में? carding, twisting, spinning and rolling. These are the production process: carding, twisting, spinning and rolling. Now Richard Arkwright created the cotton mill. Learn it properly. Who created the cotton mill? Richard Arkwright. Again, who created the cotton mill? Richard Arkwright created the cotton mill. Cotton mill बनने से क्या फायदा हुआ? But now the costly new machines could be purchased. अब लोग न्यू मशीन्स परचेज करने लगे. could be purchased, set up and maintained in the mills. और फैक्ट्रीज में स्टैब्लिश करने लगे. and under that और according to this mill क्या बेनिफिट होने लगा? under one roof, एक छत के नीचे पूरा काम होने लगा. यानी कि एक फैक्ट्रीज में, एक मिल में, और उस जब एक छत के नीचे यानी कि एक फैक्ट्रीज में पूरा काम करने लगे तो उसे मैनेजमेंट करना भी क्या हो गया? इजी हो गया. इजीली वो कर पाए उस चीज को. और इनके लिए क्या काम इजी हो गया? केयरफुल सुपरविजन ओवर द प्रोडक्शन, की प्रोडक्शन प्रॉपर्ली हो रहा है नहीं हो रहा, उसके ऊपर सुपरविजन कर सकते थे प्रॉपर्ली प्रोसेस पर. ए वॉच ओवर द क्वालिटी, इनकी विच टाइप ऑफ क्वालिटीज दे आर मेकिंग, की किस टाइप की क्वालिटी बना रहे, अच्छी है बेकार है, वो वहीं पर जज कर सकते थे इजीली. एंड रेगुलेशन ऑफ द लेबर, और लेबर को भी मतलब निगरानी में काम करवा सकते थे नियमित तौर पे, प्रॉपर वे में. तो दीज आर द वर्क, यानी कि इससे वर्क क्या हो गया? इजी बन गया काम. एक छत के नीचे होने से, अंडर वन रूफ के नीचे होने से क्या होगा? मैनेजमेंट करना भी इजी हो गया यहाँ पर. इन द अर्ली 19th centuries, अब आते हैं अर्ली 19th centuries, फैक्ट्रीज इंक्रीजिंगली बिकेम एन इंटीमेट पार्ट ऑफ द इंग्लिश लैंडस्केप. यानी कि वहां पर फैक्ट्री ज्यादा से ज्यादा डेवलप होने लगी. यहाँ पर पावर ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी, और किसकी वजह से? ड्यू टू द न्यू पावर टेक्नोलॉजी. एंड बट व्हाट हैपेंड दैट कंटेम्परेरीज वर डेजर्ट. पर जो वर्कशॉप थे, जो कंट्री साइड में, वहां पर काम को अनदेखा कर दिया गया. व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज टोटली कंसंट्रेशन किसके ऊपर कंसंट्रेशन कर दिया? ओनली और इंटेंशन ऑन द मिल्स के ऊपर टोटली सबने फोकस कर दिया कि अब तो फैक्ट्री स्टैब्लिश होगी. तो एंड टोटल फोकस ऑन द मिल्स, कंसंट्रेशन ऑन द मिल्स. क्लियर? एंड आफ्टर दैट फॉरगेटिंग द बायलेंस, और साइमल्टेनियसली, हालांकि टाउन्स में तो काम चल रहा है मिल्स के थ्रू, और सिटी कंट्री साइड में बायलेंस का मतलब साइमल्टेनियसली वर्कशॉप में काम चल रहा है. वेयर प्रोडक्शन स्टिल कंटिन्यू, टाउन्स में भी प्रोडक्शन हो रहा है, और कहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है? टाउन्स और सिटीज, विलेज में भी प्रोडक्शन हो रहा है साथ के साथ. पर जो साइमल्टेनियसली, पर इसको अनदेखा कर दिया गया, फॉरगेट, यहाँ भूल गए, और पूरा फोकस अब किसके ऊपर डाल दिया? ओनली मिल्स के ऊपर डाल दिया गया. क्लियर? The pace of industrial change. Now we will discuss the pace of industrial change. It means how rapid was the process of industrialization. Does industrialization means only the growth of factory industries? क्या हम मान सकते हैं कि industrialization का मतलब क्या था? कि growth of the factory industries. So now we will discuss the 4 points mainly one by one. Firstly we will see डायनेमिक इंडस्ट्रीज दैट टाइम वर कॉटन एंड मेटल्स. यानी कि सबसे डायनेमिक इंडस्ट्रीज कौन सी थी जो स्टार्टिंग में डेवलप हुआ इंडस्ट्रीज? कॉटन एंड मेटल.
और इन द स्टार्टिंग विच वर द लीडिंग इंडस्ट्री सेक्टर इन द फैक्ट्री प्रोसेस दैट टाइम? कॉटन. तो कॉटन लीडिंग सेक्टर फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन up to which year? Up to 1840s. It means cotton was the leading sector at that phase of industrialization is up to 1840s. यानी कि 1840s तक कौन सा सेक्टर लीडिंग में था? 1840s. After that which industries took over? Metal industries took over. Metal industry मतलब iron and steel. Now that is the question arise कि how the iron and steel came in demand. कि आयरन और स्टील की कॉटन के बाद ऐसे क्या हुआ कि ज्यादा डिमांड होने लगी? दैट इज द रीजन. नाउ विद द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज, यानी कि व्हेन दे वांट टू एक्सपेंड देयर रेलवे सिस्टम, ब्रिटेन इन इंग्लैंड 1840s दे एक्सपेंड देयर रेलवे सिस्टम इन विच ईयर? 1840s. और इन देयर कॉलोनीज फ्रॉम 1860s. यानी कि इंग्लैंड में तो रेलवे का एक्सपेंशन डेवलपमेंट कब तक हुआ? 1840s में. और उनकी कॉलोनीज में कब तक हुआ? अप टू 1816 में. इंडिया में कब हुआ? 16 अप्रैल 1853 में फर्स्ट रेलवे एक्सपेंशन. और बॉम्बे टू थाने फर्स्ट ट्रेन चले. कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर. नाउ डिमांड फॉर आयरन एंड स्टील, यानी कि व्हेन रेलवे एक्सपेंशन देन आयरन एंड स्टील केम इन डिमांड. नाउ इंक्रीज रैपिडली. बाय 1873 ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग आयरन. कह रहे कि ब्रिटेन उसमें कितना एक्सपोर्ट कर रहा था? आयरन स्टील. वर्थ उसका क्या वैल्यू था? पाउंड 77 मिलियन. कितना मिलियन? पाउंड 77 मिलियन. डबल द वैल्यू ऑफ कॉटन एक्सपोर्ट. यानी कि आप कह रहे कि आयरन और स्टील में जो एक्सपोर्ट करने का जो प्रोसेस था वो डबल हो गया. किसके कंपेरेटिवली? अब कॉटन. और अप टू 1840s विच सेक्टर वाज द लीडिंग सेक्टर? कॉटन इंडस्ट्री वाज द लीडिंग सेक्टर. क्लियर? नाउ न्यू इंडस्ट्रीज कुड नॉट. सेकंड पॉइंट क्या है कि न्यू इंडस्ट्रीज डेवलप बट दे couldn't replace the traditional industries. Traditional industries we can say that those work done mainly in the proto industrializations में. At the end of the 19th century, less than 20% workforce employed in technologically advanced industrial sector. यानी कि जो technologically advanced sector था, जो इंडस्ट्रीज डेवलप हुई थी, उसमें हाउ मच परसेंटेज ऑफ पीपल वर्क देयर ओनली वर्कफोर्स? लेस देन 20%. और 80% अभी कहाँ पर काम कर रहे थे? ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में ही. अब हम देख सकते हैं कि दैट टाइम टेक्सटाइल वाज ए डायनामिक सेक्टर. यानी कि बट प्रोडक्शन वाज डन, मोस्ट ऑफ द डन, बट नॉट इन फैक्ट्रीज. दैट प्रोडक्शन वाज मेनली डन इन द वी कैन से दैट द इन द कंट्री साइड. अभी भी कंट्री साइड में ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा था कंपेरेटिवली टू द फैक्ट्री प्रोडक्शन. क्लियर? नाउ थर्ड पॉइंट, ordinary and small innovations were the basis of growth of non mechanized sector also. या हमने देखा कि जो मैकेनिक इंडस्ट्रीज थी उनमें तो इंडस्ट्रीज में यानी कि इन्वेंशंस बिग होने लगे, पर जो स्मॉल इंडस्ट्री थी नॉन मैकेनाइज थी, यानी कि जो नॉट बेस्ड ऑन द मशीन्स, उनके अंदर भी कुछ स्मॉल इनोवेशंस हुए जिनकी वजह से नॉन मैकेनाइज इंडस्ट्रीज में भी डेवलप होना. दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट दे हैव डन हियर. जैसे फूड प्रोसेसिंग में उन्होंने कुछ डेवलपमेंट किया, पोट्री बनाने में, ग्लास वर्क, टैनिंग, फर्नीचर एटसेट्रा. फोर्थ क्या था कि द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ऑफर्ड स्लोली. यानी टेक्नोलॉजी चेंज तो हुआ, आया तो सही, पर इसको लोगों ने, इंडस्ट्रीज ने धीरे धीरे, स्लोली एंड वी कैन से दैट द ग्रेजुअली दे हैव एक्सेप्टेड दैट आइडिया. व्हाई? बिकॉज we know when new technology was very expensive. क्योंकि एक तो न्यू टेक्नोलॉजी क्या थी? एक्सपेंसिव, वेरी कॉस्टली. सेकंड, इंडस्ट्रीज कॉशियस अबाउट यूजिंग इट. और कुछ लोग इंडस्ट्रीज थे इसको सावधानी पूर्वक यूज करना चाहते थे. व्हाट दे फियर? इफ द मशीन्स ब्रोक डाउन तो रिपेयर वाज वेरी कॉस्टली. अगर ये मशीन्स खरीद तो लेंगे, अगर ये ब्रोक डाउन हो गई तो इनको रिपेयर की कॉस्ट ज्यादा आएगी. एंड नॉट इफेक्टिव, और ये प्रॉपरली इफेक्टिव भी वर्क नहीं किए थे. That is mainly claimed by the inventors and manufacturers. और जैसे inventors और manufacturers ने क्या claim किया था कि these new inventions are very effective and these are very efficiency, but truly they were not done. We can see the examples in the steam engine. Firstly हम इसका एक example देख सकते हैं steam engine में. जैसे James Watt, you have heard the name James Watt. Improved steam engine produced by Newcomen. Newcomen ने सबसे पहले स्टीम इंजन बनाया, पर दैट वाज नॉट सक्सेसफुल. इसको इम्प्रूव किसने किया? जेम्स वॉट ने. एंड पेटेंटेड.
द न्यू इंजन इन 1781 में अपना एक नया इंजन बनाया, स्टीम इंजन, और इसको पेटेंट करवा लिया। इसको बेचने की, खरीदने की पूरी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब किसके पास हो गई, जेम्स वॉट। तो यानी कि आ सकते हैं हु डिस्कवर्ड या हु प्रोड्यूस द या हु मेक द न्यू इंजन फॉर द स्टीम इंजन, तो जेम्स वॉट। उसने किसने पेटेंट करवाया, जेम्स वॉट। और इन विच ईयर, 1781। बट इसको मैन्युफैक्चर करने वाले कौन थे, हिज इंडस्ट्रीज फ्रेंड मैथ्यू बोल्टन। मैथ्यू बोल्टन मैन्युफैक्चर्ड द न्यू मॉडल, यानी कि मॉडल को बनाया किसने हेल्प से, हिज इंडस्ट्रीज फ्रेंड मैथ्यू बोल्टन। एट द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, जब से हमने देखा इन द स्टार्टिंग नोबडी वाज परचेजिंग, कोई भी इसको बाय नहीं मिला, कुडंट बाय, मतलब कोई इसको खरीदने वाला नहीं मिला स्टार्टिंग में। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे एट द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी 321 स्टीम इंजन ऑल ओवर इंग्लैंड, मतलब बिगिनिंग जब हम 19th सेंचुरीज का देखते हैं तो ओनली ऑल ओवर इंग्लैंड में कितने स्टीम इंजन थे, 321। क्योंकि हमने कहा ना कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस तो बट ऑकर्ड स्लोली। एक तो एक्सपेंसिव थी, एक्सपेंसिव के साथ साथ अगर ये रिपेयर होने के लिए जाएंगे तो दैट इज अगेन कॉस्टली पड़ रहा था। ये इफेक्टिव फुली भी नहीं था जितना इनसे उम्मीद की गई थी, जितना इन्वेंटर्स और मैन्युफैक्चरर्स ने क्लेम किया था कि दीज आर वेरी इफेक्टिव। ठीक है, तो हाउ मेनी स्टीम इंजन्स वर देयर, 321 स्टीम इंजन्स वर देयर एंड ऑल ओवर। इनमें से 80 कहाँ इन्वॉल्व थे, कॉटन इंडस्ट्रीज में थे, और जो लीडिंग सेक्टर था कॉटन इंडस्ट्री उस समय का। आफ्टर दैट 9 वूल इंडस्ट्रीज में लगे हुए थे स्टीम में, और रेस्ट जो बचे हुए हैं रेस्ट इन माइनिंग के काम में, कैनाल वर्क्स, आयरन वर्क्स। तो हमने ये देखा कि द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, की हाउ द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन। हमने 4 पॉइंट इसमें डिस्कस किया कि अप टू 1840 विच सेक्टर वॉज द डायनामिक सेक्टर, कॉटन के बाद इसको किसने रिप्लेस कर दिया, मेटल इंडस्ट्रीज ने। मेटल इंडस्ट्री की डिमांड किसकी वजह से बढ़ी, जब इंग्लैंड में किसका एक्सपेंशन हुआ, रेलवेज का 1840s, और इसकी कॉलोनीज में रेलवे का एक्सपेंशन कब हुआ, 1860s तक। क्लियर। और हमने यहाँ भी देखा कि अप टू 1873 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग आयरन और स्टील का वैल्यू कितनी हो गई थी, डबल कॉटन के कंपेरेटिवली, यानी कि पाउंड 77 मिलियन। सेकंड हमने देखा न्यू इंडस्ट्रीज डेवलप तो हो चुकी थी बट दे कुडंट रिप्लेस द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ये सभी भी यहाँ पर जो टेक्नोलॉजिकल एडवांस इंडस्ट्रीज थी उसमें वर्क काम करने वाले कितने लोग थे, लेस देन 20%, और जो बचे हुए यानी कि अप्रोक्सीमेटली 80% दे वर ऑल्सो डूइंग वर्क इन द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। और जो टेक्सटाइल एक डायनेमिक सेक्टर था वहाँ प्रोडक्शन अभी भी कहाँ हो रहा था, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में हो रहा था लार्ज स्केल पर। थर्ड हमने डिस्कस किया कि जो नॉन मैकेनाइज इंडस्ट्रीज थी यानी कि जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, दे ऑल्सो डन सम स्मॉल इनोवेशंस, उन्होंने भी छोटे छोटे इन्वेंशन करके अपने आपको इम्प्रूव किया। किस प्रोसेस में, मतलब फूड प्रोसेसिंग में, पोट्री, ग्लास वर्क, टैनिंग, फर्नीचर्स एक्सेट्रा। फोर्थ हमने देखा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए बट दे ऑकर्ड स्लोली। क्यों, वाई, बिकॉज न्यू टेक्नोलॉजी वॉज एक्सपेंसिव थी, तो दैट्स वाई इंडस्ट्री इज वेरी कॉशियस अबाउट यूजिंग इट। और साथ ही साथ क्या था, इफ दे मशीन्स ब्रोक डाउन, अगर खराब हो गई, टूट गई, तो उनको रिपेयर वॉज वेरी कॉस्टली। और साथ ही साथ इन्वेंटर्स और मैन्युफैक्चरर्स ने जो क्लेम किया था कि दीज आर वेरी इफेक्टिव बट ट्रूली दे वर नॉट इफेक्टिव। वी कैन सी द एग्जांपल्स ऑफ स्टीम इंजन। जेम्स वॉट इम्प्रूव्ड स्टीम इंजन, जो सबसे पहले कितने प्रोड्यूस किया था, न्यू कॉमन ने। बाद में जेम्स वॉट ने इसको पेटेंट किया, और कौन से ईयर में इसको तैयार किया, 1781 में। किसकी हेल्प से, हिज इंडस्ट्रीज फ्रेंड मैथ्यू बोल्टन के सहयोग से। स्टार्टिंग में नो वाज बाय, कोई इसको खरीदने वाला नहीं था। जैसे हमने देखा इन द अर्ली 19th सेंचुरी ओनली 321 स्टीम इंजन्स ऑल ओवर इंग्लैंड, और उसमें से 80 कॉटन इंडस्ट्रीज में थे, 9 वूल इंडस्ट्रीज में, रेस्ट ऑफ द जैसे माइनिंग, कैनाल वर्क्स, आयरन वर्क्स एक्सेट्रा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्टीम पावर एंड हैंड लेबर, कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैंड लेबर हियर। Now we will discuss the hand labor and steam power. कि why the industries preferred hand labor comparatively to the steam power. In Victoria, Britain, we can see no shortage of human labor. कि why in the Victorian Britain time, कि why there is no shortage of human labor. What is the reason behind that? Because poor peasants now move to cities, and for which purpose? In searching of jobs, and they are waiting for the work.
So it means poor peasants move to the cities for which purpose? For searching the jobs, and they are waiting for the works. Now why industries preferred hand labor? क्यों उन्होंने हैंड लेबर को प्रिफर किया कंपेयर टू स्टीम पावर? क्यों? बिकॉज प्लेंटी ऑफ लेबर, बिकॉज लॉट ऑफ लेबर वर्क वॉज देयर और देयर वेजेस आर वेरी लो, यानी कि उनकी वेतन भी काफ़ी कम था जितने लेबर होंगे. एंड आफ्टर दैट मशीन्स रिक्वायर्ड लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट. प्लेंटी ऑफ लेबर अवेलेबल थे, देयर वेजेस वर आल्सो वेरी लो, तो इट मीन्स नो शॉर्टेज ऑफ लेबर वर्क. जब शॉर्टेज ही नहीं रहेंगे तो उनको हाई वेजेस भी नहीं देने होंगे. तो देन व्हाई दे विल सेट अप द मशीन्स? क्योंकि मशीन्स रिक्वायर लार्ज कैपिटल, बिकॉज मशीन्स रिक्वायर द मनी रिक्वायरमेंट, इन्वेस्टमेंट. और लेबर का तो क्या सीजनल भी हो सकते थे, काम करवाया फिर उनको फ्री कर दिया. बट व्हेन दे विल परचेज द मशीन, लेबर खरीद ली तो उनको यूज ही करना होगा, उनके तो पैसे लगा चुके, उसमें इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं. तो इन मैनी इंडस्ट्रीज वी हैव सीन द डिमांड फॉर लेबर वॉज सीजनल, यानी कि सीजन के ऊपर डिपेंड करती. जैसे आपने देखा होगा क्रिसमस के समय कैटरिंग का काम काफ़ी बढ़ जाता है फॉरेन कंट्रीज में, तो बेकरी की शॉप पे लोगों को काम मिलेगा. ऐसे ब्रिवेरीज की जो शॉप है जो जहाँ पे गैस वर्क है, जैसे स्पेशली सर्दियों में उनकी डिमांड बढ़ती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है. तो इनकी ये वर्कर्स कैसे काम करते हैं? सीजनल. जैसे हम ये देख सकते हैं गैस वर्क है, कैटरिंग टू क्रिसमस डिमांड्स, बुक बाइंडर्स एक्सेट्रा. तो इंडस्ट्रीज प्रिफर्ड हैंड लेबर, हैंड लेबर को प्रिफर करते थे. क्यों? एम्प्लॉइंग वर्कर्स फॉर द सीजन, कि सीजन्स के लिए वो उनको हायर कर लेते थे, फिर उसके बाद उन लेबर को फ्री कर देते थे. लेकिन मशीन को फ्री थोड़ी ना कर सकते, मशीन तो परचेज कर ली तो अपने पास करने. और मशीन्स के लिए क्या था? दे रिक्वायर द लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ऑल्सो रिक्वायर्ड दैट. और लेबर के लिए क्या था? मनी भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि वेजेस आर वेरी लो हियर. एंड आफ्टर दैट ए रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कुड बी प्रोड्यूस विद हैंड लेबर. और कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे उस समय डिमांड थी जो हैंड लेबर ही बना सकते थे, यानी कि ह्यूमन स्किल्स की उनके अंदर रिक्वायरमेंट थी उनको बनाने के लिए. मशीन्स में प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म्स, स्टैंडर्डाइज गुड्स फॉर मास मार्केट. मशीन्स में तो जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे 100 बना रहे हैं, 200 बना रहे हैं, तो स्टैंडर्डाइज आएंगे, एक जैसा यूनिफॉर्मिटी रहेगी. स्टैंडर्डाइज गुड्स, नाप तोल जितना भी है जैसे भी बनाना है एक जैसे फॉर मास मार्केट, यानी फॉर द मार्केट के लार्ज स्केल पर. लेकिन अब हमें हैंडमेड कुछ बनवाना है, तो मुझे जैसा डिजाइन पसंद है अकॉर्डिंग टू माई चॉइस आई कैन ऐड, मैं उसको बता सकती हूँ मुझे ऐसा डिजाइन चाहिए, मुझे अपनी फ्रेंड से अलग चाहिए या उससे अलग चाहिए, तो हम उसके अंदर मतलब वेरीफाई कर सकते हैं. वेराइटी ऑफ डिजाइन हम उनके अंदर डाल सकते हैं हैंडमेड से. तो सेम था. बट द डिमांड्स इन द मार्केट, और डिमांड क्या थी उस समय मार्केट में? इंट्रिकेट डिजाइन एंड स्पेसिफिक शेप्स, यानी कि बारीक डिजाइन डालना छोटे छोटे और उनके अंदर स्पेसिफिक शेप डालना. ये हम सिर्फ किससे पॉसिबल था? ओनली हैंडमेड से, ह्यूमन स्किल से. क्योंकि मशीन्स में तो क्या था? यूनिफॉर्म्स थे और स्टैंडर्डाइज गुड्स बनते थे. किसके लिए? फॉर मास मार्केट के लिए. अब जैसे हमने देखा इन द मिड 19th सेंचुरी, वहाँ पे 500 वेराइटीज ऑफ हैमर्स और 45 काइंड्स ऑफ एक्सिस. हैमर्स का मतलब क्या होता है? हथौड़ा, और एक्सिस का मतलब कुल्हाड़ी. इतने टाइप्स के हैमर्स बने, प्रोड्यूस हुए, 40 काइंड का एक्सिस. तो दोज रिक्वायर ह्यूमन स्किल्स नॉट मैकेनिकल टेक्नोलॉजी. तो ये कहने का मतलब कि हैमर्स और एक्सिस को बनाने के लिए कोई मैकेनिकल टेक्नोलॉजी, यानी कि मैकेनिकल टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट नहीं है. इनको बनाने के लिए, इनको प्रोड्यूस करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? ह्यूमन स्किल की रिक्वायरमेंट. और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेराइटीज? 500. अगर हम अलग अलग वेराइटीज के बनाएंगे हैमर्स, लेकिन हम मशीन में बनाएंगे तो एक जैसे निकल के आएंगे सारे हैमर्स. ऐसे ही काइंड्स ऑफ एक्सिस मतलब अलग अलग प्रकार के बनाएंगे थे, लेकिन मशीन में बनाएंगे तो यूनिफॉर्म आएंगे, एक जैसे एक साथ निकलेंगे. लेकिन ह्यूमन स्किल उसको वेरिएशंस दे सकता है अलग अलग. उसमें 45 अलग बनाए, यहाँ पर 500 अलग वेराइटीज को, यानी कि हियर नॉट रिक्वायर्ड द मैकेनिकल टेक्नोलॉजी. आफ्टर दैट इन द विक्टोरियन ब्रिटेन, अपर क्लास, जो अपर क्लास कौन सी थी वहां पर? मिली अरिस्टोक्रेट्स. अरिस्टोक्रेट्स का मतलब नोबलमैन एंड बोर्जियोसाइट्स. बोर्जियोसाइट्स का मतलब क्या होता है? रूलिंग क्लास, जो शाही लोग थे. दे प्रिफर्ड थिंग्स प्रोड्यूस बाय हैंड. जो अपर कास्ट के लोग थे, जो रूलिंग क्लास थी यहाँ पर, नोबल मैन थे, दे प्रिफर्ड प्रोड्यूस थिंग्स प्रोड्यूस बाय हैंड. ये हैंडमेड चीज को ज्यादा लाइक करते थे. वाई? बिकॉज हैंडमेड प्रोडक्ट्स सिंबलाइज रिफाइनमेंट एंड क्लास. क्योंकि हैंडमेड प्रोडक्ट्स उनकी क्लास को रिप्रेजेंट करते थे, क्लैरिफाई करते थे कि हाँ ये पर्टिकुलर इस क्लास से बिलोंग करते हैं, कि हाँ ये अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, ये अपर क्लास के लोग हैं. एंड साथ ही साथ उनमें और क्या क्वालिटी थी? बेटर फिनिश.
हैंडमेड प्रोडक्ट्स की क्या होती है, बेटर फिनिश था और केयरफुली डिजाइन किया जाता था, जैसे जिसको जैसा डिजाइन चाहिए। अगर मशीन मेड गुड्स का एक जैसा आएगा तो उनमें कोई वेरिएशंस नहीं हो पाएगा, इसीलिए उन्होंने वेरिएशंस के लिए किसको प्रिफर किया, हैंडमेड प्रोडक्ट्स को ज़्यादा इन्होंने लाइक किया, उसने मेनली स्पेशली अपर क्लास ने। अब यहाँ पर जो मशीन मेड गुड्स थे फॉर एक्सपोर्ट टू द कॉलोनीज, मशीन मेड गुड्स का यहाँ पर मेनली किसके लिए यूज किया जाता था, एक्सपोर्ट टू द कॉलोनीज में सेंड करने के लिए, कॉलोनीज में एक्सपोर्ट करने के लिए। बट इन कंट्रीज वेयर द शॉर्टेज ऑफ लेबर शॉर्टेज, तो दे वर कीन ऑन यूजिंग मैकेनिकल पावर, लेकिन जहाँ पर जिस कंट्री के अंदर ह्यूमन लेबर की रिक्वायर शॉर्टेज थी वहां पर वो किसकी तरफ फोकस कर रहे थे, मैकेनिकल पावर। और दिस वाज द केस इन द 19th सेंचुरीज अमेरिका। ये हम कौन सी कंट्री का एग्जांपल देख सकते हैं, अमेरिका का हम देख सकते हैं। अमेरिका के अंदर क्या था बेटा, शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर, यानी कि वहां की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकती, शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर था तो वो पूरा नहीं करते, इसीलिए उन्होंने किसके ऊपर फोकस किया, मैकेनिकल पावर्स के ऊपर। बट दैट केस वाज नॉट हैपेंड इन द ब्रिटेन, ब्रिटेन में कोई हायरिंग करने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, बिकॉज लॉट ऑफ, हमने देखा ना, प्लेंटी ऑफ लेबर वाज अवेलेबल, और वो भी वेजेस आर वेरी लो, वेजेस भी काफी कम था। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर देखा कि व्हाई इंडस्ट्रीज प्रिफर्ड द हैंड लेबर कंपेरेटिवली टू द स्टीम पावर, क्योंकि हैंड लेबर में ना तो उनको कोई मनी लगानी है, सीजनल उनके पास अवेलेबल था, प्लेंटी ऑफ लेबर था, उनका वेजेज आर ऑल्सो वेरी लो, कोई उनका खराब होने का कोई चांसेस नहीं, मशीन्स तो खराब हो गया तो उसकी रिपेयर की कॉस्ट भी काफ़ी थी। और साथ के साथ जो यहाँ पर अपर कास्ट थी वो अपने आप को रिफाइनमेंट क्लास रिप्रेजेंट करने के लिए कौन से प्रोडक्ट का यूज करती थी, प्रोड्यूस बाय हैंड नॉट मैकेनिकल पावर का यूज करना चाहते थे, क्योंकि वो एक तो केयरफुली डिजाइन थे और एक स्पेसिफिक बेटर फिनिशिंग में मिलते थे। पर ये लेबर शॉर्टेज कहाँ पर ज़्यादा थी, लेबर शॉर्टेज की कमी कौन सी कंट्री में हमने देखा, इन द केस इन 19th सेंचुरीज अमेरिका, और दैट वाज केस नॉट इन द ब्रिटेन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लाइफ ऑफ द वर्कर्स।